So now we're going to discuss about the publication and the request for examination part. Okay. So section 11A. 11A. So we discussed section 11 when you started the class today. And then section 11A is regarding the publication of the applications. So what it says that once you file applications, so then after 18 months कैसे काउंट करते हैं? Date of application or priority, whichever is earlier. Right? And then rule 20 for 1, if you read, then within 1 month after expiry of 18 months. So 18 month जब पूरा होता है तो within 1 month, उसके 1 महीने बाद ही वो यानी 19th month में कभी भी पब्लिश हो जाएगा. Okay. Okay. And can we publish earlier than 18 months? Anyone knows? So early publication is possible, sir. Early publication. Okay. Good. Rule 24 B. नहीं A 24A. Form 9 है ना? Form 9 यूज करते हैं. And this is the fee. Natural person 2500 and others 12,500 before 18 months. And application is not published. तो क्या होगा? In which case it is not published? So secrecy direction होगा तो. Correct. If secrecy direction imposed under section 35 should not publish. Then another condition in which it is not published is application is abandoned under section 9(1). So 9(1) क्या है कि complete specification is not filed within 12 months of provisional specification. So 9(1) क्या है? If it is abandoned, then it is not published. Secrecy direction है तो not. हाँ बोले. Sir एक doubt है sir. Sir suppose it is not published, abandon हो गया. Then उसके बीच किसी और ने एक patent file किया. So will it be considered as a prior art? Means we as a general public, we cannot see those patents which are not published. So what about the examiner? Will he see this document or not, sir? No. Okay. Can you tell why? Or anyone can tell why? No, sir. Guess करो. आपको पता है आंसर? आपको आंसर पता है? You just like you are not able to connect it. आपने सेक्शन पढ़े हुए हैं. ठीक है. I will come back. When we discuss, then you tell me कि हाँ यही आंसर था. ठीक है? Okay, okay, sir. आज अभी discuss, we will discuss now only. So you tell me there at that time. And then Okay, sir. Then next is the application has been withdrawn by 15th month. That is 3 months before the completion of 18 months. You can withdraw the application. Okay, you can withdraw the application, and in that case also it is not published. And if secrecy direction is given under section 35, then application is published after it is removed. So once secrecy direction is removed, then it is published. अगर वो 18 months के पहले होता है तो 18 months हो जाएगा. अगर वो 18 months के बाद रिमूव होता है, then उसके बाद में होगा. Then when the application is published, what are the details that get published? It is date of application, when application is filed, then application number, name and address of applicant, and an abstract. इसका मतलब है कि full detail publish नहीं होता है. मतलब claim publish नहीं होता, and description, drawings publish नहीं होता. So my question is, how do I know what is the drawings क्या थे, specification क्या थे, claim क्या है? How do I know? How can I know this? Any idea? Anyone? So Under publication, publication जब होता है sir, what I have seen is that abstract is published in the official journal. हाँ. But sir, if you have this one application number,
you can access through the patent office database, I think, sir, to see the rest of the documents. Will it be available, sir? I'm not Wait a sure. minute. That is my question. Sir, claim will be enclosing the innovation, sir. Innovation. Yes, sir. No, Meaning, sir. In the abstract, the claims won't be showing, sir. correct. Abstract is only abstract, right? Yes, sir. Only the title, abstract, detail of the inventor's affiliation, class of the patent. I think only these things will be displayed. Correct. Rest of the things won't get displayed in the official journal. But sir, I think from the official database of the patent office means to check the status. If we just put the application number, if it is published, I think the rest of the documents will be also it will be available in the database. Form Sir, 1, it 2, will be 3, all these officially things. published in the journal, Mm-hmm. and then there will be time given for objection. Okay. Okay. And if it is correct, then it will be accepted. Otherwise, it will be rejected. Mm-hmm. So that we'll discuss in the next class. That is pre-grant and post-grant opposition. Okay. So when it is published, so they publish the date application, then application number and details of the applicant and also the abstract. And after the publication, the biological materials are made available to the public. Okay. And then if you want to get the drawings and specification, then under Rule 27 and 74A and Section 72, you need to pay a fee, 320 or 1600, as the case may be. And then you can get to see the specification details. And once it is published, the publication date is very important, because once that is published, then the patentee, they get the right as if the patent is granted, but under the condition that they cannot file infringement suits until the grant of patent. इसका मतलब क्या हुआ? Why this is important? Any idea? So once under Section 11A, patent is published. So what happens? That you get the right as if the patent is granted, but you cannot file infringement suits until the grant of patent. तो अगर So, so I think the inventor can go for commercialization phase, but sir, infringement suits for infringement cannot be filed because not yet granted. So once it is granted, then only sir हम लोग infringement अगर होता है तो उसका ये कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं. what do you mean by commercialization? Commercialization means sir पब्लिश होने के बाद मतलब इसको सर हम लोग लाइसेंस कर सकते हैं. Means it's a negative right, so we can prevent others from using this. So how you can prevent? Using, selling and offering for sale. कैसे कर सकते हैं आप? How you can prevent others from doing this? So no idea, sir. Good. So we'll discuss more on this when we discuss about the infringement, ना? Okay. We'll discuss more. But यहाँ में क्या है? Just in brief, I would say that क्या होता है कि once the patent application is published, okay. So see, once the patent is published, it does not give me a right to manufacture this. अगर मेरे पास में एक पेन बनाने का पेटेंट है, तो वो पेटेंट पब्लिश हो गया, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं अब पेन बनाने का फैक्ट्री डाल सकता हूँ. So I discussed in the first class that is called FTO, Freedom to Operate Study. क्योंकि my process of making pen or the pen itself और किसी ड्रग का कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, that should not infringe others patent. अगर किसी का पेटेंट है तो उसको infringe नहीं करना चाहिए. So to make this, to do commercialization activity like manufacturing or importing
और सेलिंग, उसके लिए हमको एफटीओ करना पड़ता है कि किसी दूसरे का पेटेंट हम इन्फ्रिंज नहीं कर रहे। ओके, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जो अपना जो जो प्रोसेस अगर हमको दिखता है कोई कोई व्यक्ति इन्फ्रिंज कर रहा है, देन यू कैन ऑलवेज यू कैन सेंड नोटिस। आप इसको नॉट लीगल थ्रेट की तरह नहीं, बट यू कैन सेंड कि आवर पेटेंट इज पेंडिंग इन द प्रोसेस। ओके, इन दिस प्रोसेस आप ऐसा इनको मैसेज भेज सकते हैं उनको। ओके, यू कैन टेल देम, नॉट थ्रेट नहीं दे सकते आप उनको। आप यू कैन नॉट थ्रेटन देम कि आई विल सू यू इन द कोर्ट केस, ऐसा थ्रेटन नहीं करने का। बट यू कैन सेंड मैसेज दैट आवर पेटेंट इज पेंडिंग इन दिस प्रोसेस, ऐसा आप मैसेज भेज सकते हो। एंड देन इसका इम्पेक्ट कैसा होता है, अगर मान लो कि वो व्यक्ति 2 साल से बना रहा है। ओके, एंड देन once the patent is granted, once the patent is granted, and then you can file an infringement suit against him, and the damage जो claim होती है, जो डैमेज क्लेम हुआ है, वो जिस डेट को पेटेंट पब्लिश हुआ है उस डेट से डैमेज कवर हो जाती है। इसलिए ये डेट ऑफ पब्लिकेशन, द राइट ऑफ पेटेंटी ऑन डेट ऑफ पब्लिकेशन इज इम्पोर्टेंट। जब पब्लिश हो गया है उस डेट से आपका राइट्स हो गया, मतलब यू हैव राइट्स टू स्टॉप अदर्स। लेकिन ग्रांट नहीं हुआ है, इसलिए आप इन्फ्रिंजमेंट सूट्स फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि यू नेवर नो, पब्लिश हुआ है, अभी एग्जामिन होगा, एग्जामिन होके वो ग्रांट होगा करने को पता नहीं। लेकिन आपको गवर्नमेंट राइट देती है कि अगर फ्यूचर में अगर पेटेंट ग्रांट हो जाता है और कोई व्यक्ति तब से कर रहा है, देन जो डैमेज है वो डैमेज जब से अगर पेटेंट पब्लिश हो गया है उस डेट से लेकर के डैमेज उसका काउंट करके आपको मिलेगा आपको। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई व्यक्ति है, मैंने पेन के ऊपर पेटेंट फाइल किया है और वो पेन कोई दूसरा बना रहा है, मतलब है ना, पहले से बना रहा था, एंड देन वी फाइल द पेटेंट, और वो बनाते बनाते जा रहा है। तो 2 साल में मान लो कुछ ने 2 लाख रुपए का पेन सेल किया उसने 2 साल में, एंड देन वंस द पेटेंट इज ग्रांटेड, आई विल से कि ये 2 लाख का मेरा लॉस है, क्योंकि ये व्यक्ति पेन को बनाया जा रहा था जबकि पेटेंट मेरा पेटेंट था। तो आई लॉस्ट में मार्केट शेयर ऑफ 2 लाख रुपीज, तो मुझे जो है वो 2 लाख का कॉम्पेंसेशन चाहिए। उसके बाद जो बहुत सारी चीज, रेपुटेशन का डैमेज, फिर से जो है अटॉर्नी का फीस वगैरह है। सो देर इज अ डिफरेंट प्रोसेस टू कैलकुलेट कितना डैमेज होगा। सो विल डिस्कस मोर इन मोर डिटेल, ये इन्फ्रिंजमेंट कैसे फाइल करते हैं, कौन कर सकता है, नहीं कर सकते, क्या प्रोसेस होती है, विल डिस्कस इन अदर क्लासेस व्हेन डिस्कस ऑन इन्फ्रिंजमेंट सूट्स। ठीक है, अभी के लिए जस्ट टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज कि जो डैमेज काउंट कब से करेंगे, जब पेटेंट पब्लिश हो गया है, इसलिए दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Therefore, and can you tell me why? I mean, publication or application after 18 months is normal. It happens normally. Okay. If it is, there is no secrecy direction, or application is not abandoned, or it is not withdrawn. अगर ये तीनों केस नहीं है, तो publication will happen automatically. Why? Why someone will pay extra money to publish the patent before 18 months? बता सकते हैं आप? Sir, without publication, no one can file for examination, request for examination. So if we first publish it at the earliest and then we go for examination, so there will be higher chances of getting it granted soon. ओके, ओके, सो अर्ली ग्रांट है ना, Yes, sir. अर्ली ग्रांट के लिए। ओके, और क्या सिनारी हो सकता है? तो अर्ली ग्रांट होगा तो सर देन सर ये कॉमर्शियलाइजेशन और जो भी इंफ्रिंजमेंट का चांसेस है उसको ज्यादा प्रोहिबिट कर सकते हैं, मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं इसको। हाँ, ठीक है, दैट इज वन वन पॉइंट अंडरस्टूड। अदर क्या पॉइंट्स था? एनीवन एल्स? एंटिसिपेशन के रिगार्डिंग। एंटिसिपेशन, गुड गुड पॉइंट। वो क्या, व्हाट इज एंटिसिपेशन, क्या होता है? तो इतना डिटेल नहीं पता है, बट एंटिसिपेशन अगर पब्लिकेशन होगा तो फिर एंटिसिपेशन वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए अर्ली पब्लिश करना मतलब अच्छा रहता है। आई थिंक यू हैव पॉइंट। सो
ये इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने वैसे तो मतलब प्रायोरिटी डेट हमारा पहले का रहेगा क्योंकि हमने पहले फाइल किया है, लेकिन अगर पब्लिश हो जाती है देन अदर्स विल आल्सो कम टू नो कि ऐसा कुछ पेटेंट फाइल हो गया है, सो दे विल नॉट फाइल देयर पेटेंट। ये एक बात हो सकती है। सो यू कैन स्टॉप others from filing patent in this area, and वो एक बात हो सकती है। और क्या हो सकता है? How it helps early publication, how it helps, just think about, see, if you participate more in discussion, I mean, you learn more. Otherwise just reading the sections and this is not enough. और क्या हो सकता है? What are other benefits? Yeah, possible benefits, just think about it. See, in exam or in interview, this is the question could be asked. So it is not possible for anyone to tell you what are the different scenarios under which the question can be asked. So it looks very simple. Section 11A is publication of application. After 18 months, it is published. And if you want to publish before 18 months, then Form 9, you can file and pay the fee, 2,500 or 12,500 and get published. ये तो इतना बहुत सिंपल सा है, पर इसका implication क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, how to use this, how to utilize this, what happens as a user or as a patent agent. You are going to become a patent agent. जिस दिन आपको पेटेंट एजेंट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अगले दिन से ही आप बोर्ड लगा सकते हो अपने घर के आगे, आई एम पेटेंट एजेंट, एंड पीपल कैन कम एंड सीक योर एडवाइस. So therefore, patent office they want that you should think like a patent agent. So ये सारे pros and cons, advantage, disadvantage, ये फायदा है नहीं फायदा है, you should think about it, and that is the point we should discuss. And for that purpose, we have our special group for patent agent examination. So we should discuss it. अगर डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, आपको याद हो भी सकता है, लेकिन मे बी if you go for an interview for a higher position in the as a patent agent, तो वहां भी ये बोलेंगे कि इनको खाली रट्टा मार के आए हैं और बाकी कुछ डेटा इनको समझ नहीं है, पेटेंट एक्ट का इनको समझ नहीं है इनको. दैट इज व्हाट विल बी इंटरप्रेटेड. इसलिए आप डिस्कस कीजिए. आई मीन, वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन अर्ली, सो वी हैव एडवांटेज, वी कैन डिस्कस. सो व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्कस कीजिए, यू डिस्कस अबाउट कि क्या क्या मतलब है इसका, क्या समझा आपने. दैट इज वेरी गुड. सो एनीवन, तो हमने देखा कि प्रायर पब्लिकेशन का एक एडवांटेज हमने देखा कि उसको राइट्स मिल जाएंगे, ग्रांट हो जाएगा, राइट्स मिल जाएंगे उसको, एग्जामिनेशन अर्ली हो जाएगी, ग्रांट जल्दी हो जाएगा, वो एक हमने समझा. दूसरा हमने क्या समझा कि वो इट विल बिकम ए प्रायर आर्ट. वैसे तो प्रायर हो जाएगी, बट वंस इट पब्लिश्ड, others will also come to know that something is published, and then either they can modify their research, they can stop the activity कि हो सकता है बाद में ग्रांट हो जाए. they can also approach you for the license. अगर वो काफी क्रिटिकल हुआ, so they can also approach you for the license कि देखो we are working on this in this topic और हमारा बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, आपका अगर पेटेंट पब्लिश हो जाता है तो यू मे फाइल इन्फ्रिंजमेंट केस. इससे पहले वी आर आस्किंग यू टू लाइसेंस टू अस. तो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन शुरू हो सकता है. सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन हैपन. सो वन इज दैट यू गेट प्रायर राइट्स, ग्रांट हो गया. दूसरा हो गया यू कैन स्टॉप अदर्स फ्रॉम फाइलिंग, क्योंकि उनको आपने बता दिया, यू टोल्ड यू आर गोइंग टू टेल एवरीवन इन द वर्ल्ड दैट something like this is published, don't work on this topic, it is known to the world now. Although, I mean, date of priority is always there, but only after published. तो publish हो गया, सबको मालूम चल जाएगा. और क्या हो सकता है सिनेरियो? So one other scenario could be like if you are a startup company. अगर आप स्टार्टअप कंपनी हो and then आप कहीं फंडिंग के लिए जा रहे हो कहीं पे, so it is always good कि आप दिखाओ कि देखो हमने पेटेंट फाइल किया है, देखो ये देखो हमारा पब्लिश हो चुका, हमारा ये पब्लिश हो चुका हमारा ये. सो दैट इज व्हाट अर्ली पब्लिकेशन हेल्प्स. समथिंग व्हिच इज आपके डेस्क पे है, आपके हाथ में है, आपका जो किसी से बात करने जा रहे हो फंडिंग के लिए, आप बोल सकते हो कि देखो हमारा पेटेंट है, पब्लिश है, देखो हमारे पास ये पब्लिकेशन है. इससे क्या आप कहो कि हमने फाइल किया है, फाइल किया तो मे बी ए वेटेज कि हमने पेटेंट फाइल किया है, इट इज पेंडिंग अंडर अंडर रिव्यू चल रहा है पेटेंट का. लेकिन अगर पब्लिश हो चुका है, इट इज गिव्स मोर कॉन्फिडेंट. जो
आगे के लोग हैं जिनको आप दिखा सकते हो, you can show them कि this is what we have filed, this is our business model, this is our technology. So that can also help in the funding for the startups, right? So there will be many advantages. You can just think about it, and therefore these provisions are there to help different kind of people to innovate more. And in terms of economic, how it helps early publication, can you tell? Just think about it. I mean, it is not written anywhere. It is just about you to think how you can think and you can interpret it. How it helps in economic of the total overall economy of the country, early publication. No idea? So एक तो हो रहा है कि पेटेंट ऑफिस को पैसा जा रहा है, जो एक्स्ट्रा फीस पेटेंट ऑफिस को मिल रहा है, एक ये हो गया। दूसरा, इकोनॉमिक में हेल्प ऐसे करता है कि जो दूसरे लोग हैं, अगर मान लो कि मेरा पेटेंट पब्लिश हो जाता है, सो अगर आपका पब्लिश होता है और मैं काम कर रहा हूँ उस पर, दैट विल स्टॉप वर्किंग। अदरवाइज मान लो कि मेरा पेटेंट पब्लिश होने में 18 महीने लगे, अभी 18 महीने बाद पब्लिश होगा, और आप और मैं दोनों ने एक ही काम पर, एक ही आइडिया पर काम शुरू किया। आप दूसरी जगह पे, मैं दूसरी जगह पे हूँ, डिफरेंट कंपनीज, वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, बट इट्स सो हैपन दैट आपने पहले फाइल कर दिया है ना, लेकिन आपका पब्लिश नहीं हुआ, तो मैं 18 महीने तक मैं भी काम करते रहूंगा। लेकिन मान लो कि अगर 12 महीने में पब्लिश हो गया पेटेंट, मतलब, है ना, तो हम दोनों ने काम शुरू किया एक ही टाइम पे, पब्लिश हो गया है, तो आई विल स्टॉप वर्किंग इफ आई सी दैट इसमें मेरिट है, इसमें ये ग्रांट हो जाएगा, ये नया आइडिया है, सो आई स्टॉप वर्किंग। सो द रिसोर्सेज, द मैन पावर, द R&D एक्सपेंडिचर जो होगा कंट्री का, तो एक कंपनी का खर्चा है, कंट्री का खर्चा है, इट इज लाइक इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड, पूरा रिसोर्स यूज होता है ना, मैन पावर, मनी, रिसोर्सेज, केमिकल, सब यूज होते हैं उसमें। तो वो बंद कर देंगे, वो इट्स लाइक इट इज ऑल्सो हेल्प्स इन इकोनॉमिक ऑल्सो, कि दूसरे बंद कर देंगे। So that is one angle you can think about. So it's not that one perspective, just think about many perspectives. Think like a patent agent, think like someone you are telling something. So it's not about just memorizing the form, rules, fees, but understanding the implication, understanding the use is something what is important. And that will come only when we discuss. Okay. Any question till now? No, sir. Okay. So is it going good? You understand this now? Yes, sir. Oh, thanks. So now we come to section 11B. So 11 is for the priority date, 11A is for the publication, and 11B is for the examination, request for examination. So examination on request. What is the meaning of this? Why the name is request for examination? application जो होता है, Okay. Yes, yes. sir So continue. examination won't take place until and unless if it is requested. Okay, good. So this is very important. I mean, this could be asked in interview. This could be asked in interview of patent agent. This could be asked during interview of any job. किसी law firm में किसी company जाता है. This could also be asked. Why we say request for examination? And who can request? Anyone tell? Can tell? Who Any can? Huh? So any person interested and the Acha. applicant. Good. So these two persons. What is the meaning of person interested? So a person who is working in the same field and working in the development or maybe in the R&D sector, which is aligned with the area of the patent. Correct. Anyone who's an inventor. Inventor, applicant, person interested. Okay. So under section 2T, 2T interested person having business, R&D, something like that. So applicant, जो applicant है, जैसे कोई कंपनी ने फाइल किया, आपने फाइल किया, यूनिवर्सिटी ने फाइल किया, they can request for examination, and the person interested can also file for the request for examination. Okay. So now tell me, if the request for examination is filed by person interested, so why would a person interested
फाइल रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बताइए उसको क्या लाभ So So मिलेगा? after that seeing the so publication, that so, so that anyone would not steal his idea what he has discovered. नहीं समझा नहीं, फिर से बोलिए, टेल अगेन। मतलब उसका जो आइडिया है वो कोई चोरी ना कर सके। नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा? मतलब देखो, मतलब पेटेंट तो जो है आपने पब्लिकेशन फाइल किया। प्रोसेस एक्सपेडाइट करने के लिए, हाँ सॉरी, ग्रांट प्रोसेस sir, Sir, एक्सपेडाइट करने, if a patent come public granted, his business will be lost. So you interested to claim his issues in the examination. जैसे कि मान लो कि आपने पेटेंट फाइल किया है, ओके, एंड मेरा उसी डोमेन में बिजनेस मेरा है, ठीक है, तो 1 जुलाई को वो पब्लिश हो गया, वो भी ओके, 1 जुलाई पब्लिश हो गया। अ, लेकिन मुझे पता नहीं वो भी आगे एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि वो तो 18 मंथ्स के बाद ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा वो, राइट, है ना? तो मैंने क्या किया कि वाई, देन मैंने डिस्कस किया टीम में, मैंने बोला, टीम को बुलाया मैंने, और मैंने बोला देखो, हमारे कॉम्पिटिटर ने ये पेटेंट पब्लिश किया है, ये देखो इसका टाइटल एब्स्ट्रैक्ट वगैरह है, एंड देन आई ऑल्सो पेड सम फीस एंड गोट द स्पेसिफिकेशन, हमको मिल गया हमको भी। तो उसने क्लेम में क्या फाइल किया था वो भी हमको मिल गया हमको भी। अभी आपने, मतलब यू आर द इन्वेंटर, यू आर द एप्लीकेंट, आपने फाइल किया था, तो मैं वेट कर रहा हूँ, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कुछ समय बीत गया, 3-4 महीने हो गए, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, फाइल किया कि नहीं फाइल किया। तो मैंने अपने टीम से बोला कि दिस वी आर इन द सेम बिजनेस, शुड वी फाइल एज ए पर्सन इंटरेस्टेड रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। तो मेरी टीम ने मुझसे जस्टिफिकेशन मांगा कि व्हाई शुड आई पे फी फॉर रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन। हम चुप बैठते हैं ना, वो खुद ही फाइल करेगा, अगर वो रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन फाइल नहीं करेगा तो वो पेटेंट तो विड्रॉ हो जाएगा, तो हमें क्यों पैसा खर्चा करना चाहिए? तो हाउ शुड आई जस्टिफाई दिस टू माई टीम? नो आइडिया, थिंक अबाउट इट। मैं बताऊंगा, अगर आपने आंसर नहीं दिया तो मैं विल थिंक sir, अबाउट I इट। have हाँ a sir, I have बोलिए। a doubt on section 11B. हाँ I बोलिए। think there was a question asked in 2023 or 22, I forgot. उसमें ये हम्म, ऑप्शंस दिए गए थे सर, एनी पर्सन इंटरेस्टेड, और इसमें सर इन्वेंटर, और एक कुछ दिया था। तो सर एनी पर्सन, सॉरी, जो इन्वेंटर है, कैन ही फाइल फॉर एग्जामिनेशन? क्योंकि सर 11B में ऐसा कुछ लिखा नहीं है सर, वो थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन है। एक बार सर आप सर इसको क्लेरिफाई कर देंगे सर थोड़ा सा? सो एप्लीकेंट और इन्वेंटर में क्या डिफरेंस है? सर एप्लीकेंट मे नॉट बी द सर इन्वेंटर, मतलब इन्वेंटर इज द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर जिसने पेटेंट में पार्ट लिया है। एप्लीकेंट में भी एन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है सर। एप्लीकेंट हम्म, इन्वेंटर हो भी सकता है सर, नहीं भी हो सकता है सर। हम्म, he will be the proprietor of the invention, proprietor of हाँ the patent. हाँ हाँ। तो इन्वेंटर कैन फाइल रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन अंडर interested person Okay sir, then it's clear sir. because he is working the R&D ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पर्सन इंटरेस्टेड फाइल ही क्यों करेगा, एंड व्हाई दिस क्लॉज इज देयर, हाउ इट हेल्प्स? Sir, there may be sir two I think options for this answer. I think I'm not sure whether this is correct or wrong sir. एक तो सर कंडीशन हो सकता है ये, if the person interested
is looking for that particular patent. Maybe he works in any R&D organization, and if he is interested in commercializing the patent, if it examined early, and there will be higher possibility of getting it granted, then he may look for commercialization for this. ये एक हो सकता है सर. दूसरा है, if he is a competitor of that particular invention, if अगर वो भी सिमिलर फील्ड में काम कर रहे हैं और उसमें वो चाहते हैं कि उसको एग्जामिन होने के बाद ही वांट्स टू सी, मीन्स उनके खुद के जो इन्वेंशन है उसके साथ ये अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इफ ही इज अ इन्वेंशन कॉम्पिटिटर. अलाइन, देखो इन्वेंशन अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो आपको उसका क्लेम मिल जाएगा चेक करने के लिए, है ना. ओके, हाँ पेटेंट हाँ हाँ, ऑफिस, ये भी सही है. करेक्ट, वो क्यों चेक करेगा ना, यस. है ना. वो तो अच्छा. उनका क्लेम देख लिया उसने तो कि मैं अपोजिशन के लिए, क्या क्या. अपोजिशन के लिए उसको जाना होगा तो फिर वो फटाफट एग्जामिनेशन करके फिर ग्रांट करके पोस्ट ग्रांट अपोज कर सकते हैं. हाँ, गुड. मतलब आई डोंट नो बराबर है क्या, बट ऐसे हो सकता है मे बी. विल डिस्कस, गुड आइडिया. प्री ग्रांट अपोजिशन ना. पोस्ट ग्रांट, एग्जामिनेशन के बाद वो ग्रांट हो जाएगा, फिर वो पोस्ट ग्रांट करेगा ना. ये तो प्री ग्रांट नहीं कर सकते क्या. प्री यू कैन डू. ग्रांट, हाँ प्री ग्रांट भी हो सकता है, पब्लिकेशन के बाद प्री ग्रांट हो सकता है. हाँ बट तो प्री ग्रांट के लिए वो एग्जामिनेशन क्यों करवाएगा ना, पब्लिकेशन के हाँ, बाद डायरेक्टली वो प्री ग्रांट अपोजिशन कर सकता है. करेक्ट करेक्ट. बट अगर प्री ग्रांट का कुछ टाइमलाइन होगा, वो मिस हुआ होगा, तो फॉर पोस्ट ग्रांट अपोजिशन के लिए वो फटाफट एग्जामिनेशन करवा के लेगा एंड ग्रांट करवा के फिर पोस्ट ग्रांट उस पे अपोज करेगा. See, under section 25, once the patent is published but not granted anytime, हाँ. it can take 5 years, जितना टाइम ले लो, मतलब है ना, 2 साल 3 साल 4 साल. अगर ग्रांट जब तक नहीं होता है, पब्लिश हो गया ना, so you can always file प्री ग्रांट अपोजिशन, ओके. है ना. तो मेरा क्वेश्चन है कि वो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन क्यों डालेगा वो, अगर उसको इफ इट सीज दैट इज ए थ्रेट है, तो वो व्हाई ही विल आस्क फॉर रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन. वो नहीं किया तो एप्लीकेशन ये हो जाता है ना, नहीं, विड्रॉ. उसको क्या टेंशन है ना, जिसने पेटेंट फाइल किया उसका 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 प्रॉब्लम है ये, कि रिक्वेस्ट एग्जाम से फाइल नहीं किया तो फिर वो लैप्स हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा वो, है ना. आई एम पर्सन इंटरेस्टेड, मेरा खाली इसमें बिजनेस में R&D करता हूँ, मैं उसका एप्लीकेशन नहीं, वो तो मैं क्यों फाइल करूंगा उसमें. नो आइडिया सर. One, I mean, see, the answer that I'm giving is nothing that it is the only one way. So one is like pre-grant opposition and the post-grant opposition is the costly affairs. ठीक है. तो उस अपोजिशन को तो हम बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे अगर काफी एंजाइटी हो रही है कि अरे अगर ये ग्रांट हो तो क्या होगा, वो कब करेगा नहीं करेगा, सो इन दैट केस वन मे डू दिस कि अगर हम ये चलो हम कर देते हैं इसको, हम देखते हैं इसका क्या आता है, मतलब पेटेंट ऑफिस क्या सोचता है इसके बारे में कि ग्रांट होगा कि नहीं होगा ये, तो वो फास्ट हो जाती है. एंड समटाइम दिस इन्वेंटर्स कैन ऑल्सो फाइल, सो इसलिए इन्वेंटर्स कैन कम अंडर इंटरेस्टेड पर्सन एंड देन ही कैन ऑल्सो फाइल रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, है ना. जैसे तो ग्रांट नहीं होगा अगर फाइल नहीं किया तो उसने, है ना. तो जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने फाइल किया है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल नहीं कर रहा है, तो इन्वेंटर एज ए इंटरेस्टेड पर्सन कैन फाइल रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, ताकि उसका एप्लीकेशन ग्रांट स्टेज में जाए, आगे आगे बढ़े उसको. सो ही विल से दैट, मतलब मान लो ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एप्लीकेशन एनीमोर, वी आर नॉट फाइलिंग रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, लेटेस्ट वीडियो. लेकिन एज ए इन्वेंटर वो आप सोचते हो कि नहीं नहीं, मैंने पेटेंट फाइल किया है, मतलब मैं इसका इन्वेंटर हूँ और ये ग्रांट होना चाहिए मुझे, आई विल हैव ए ग्रांटेड पेटेंट इन माय नेम,
So that could be one scenario. So just think of many scenarios under which. So idea is the moment to think about it, उसका चिंतन करते हो, you will not forget it. आपको याद रहेगा चीजें, आपने चिंतन किया था, सोचा था बारे में. So timeline is within 31 months, and the form is 18 and 4,000 and 20,000, section 24, rule 24B. Examination request is not filed, then application is considered as withdrawn. तो वो withdrawn समझी जाती है. And the application can be withdrawn after filing but before grant. Application can be withdrawn after filing but before grant. Then if you want to withdraw this, और आपने अगर एग्जामिनेशन फी पे कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने फाइल कर दिया है, तब भी आप विड्रॉ कर सकते हो. इन दैट केस विल गेट द रिफंड. तो इफ वांट टू विड्रॉ द एप्लीकेशन बिफोर द ग्रांट, देन फॉर्म 29 है, रूल 2674A, देयर इज नो फी. अगर आपने एग्जामिनेशन फी फाइल कर दिया है, ओके, और फिर आपके दोस्तों ने आपको बोला कि गलती कर दिया, आपके कर दिया, तो अगर एफआईआर इशू नहीं हुआ है, देन अगेन यू कैन यूज फॉर्म 9 और फी रिफंड ले सकते हो. यू कैन गेट द फी रिफंडेड, है ना. तो ऐसा भी हो सकता है. एंड इफ secrecy डायरेक्शन इज देयर, देन रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन कैन यू फाइल विदिन 31 months or within 6 months after the date of revocation of secrecy direction, whichever is later. तो अगर आपके एप्लीकेशन में अंडर सेक्शन 35 देयर इज secrecy डायरेक्शन फाइल आ जाता है नोटिस आपको, सो यू कैन वेट फॉर 31 months, उसके पहले फाइल कर दो. अगर secrecy डायरेक्शन अगर दिया जाता है, then what you can do, that you can after 6 months of the revocation secrecy direction is filed. Then there is a note that this 31 months time period is only for those applications filed after 15 March 2024. Okay, so anything that is filed before 15 March 2024, 40th months is there to file a request for examination. Any doubt on this? This will be very clear. ठीक है ना? Clear, sir. Yes, Clear. sir. Okay. Then what happens? Examination application starts. So under rule 24B21, section 11A publication, section 11B examination of request is filed. And then what happens, then examiner will prepare the report. And then what they do, that application and specification are as per the acts and rules, they will check those. And they will also check if there is a lawful ground of objection to the grant. And then they will share, they prepare the result of investigation under section 13 and any other matters. And they will take 1 to 3 months to prepare the report. Okay. And then they will share the report to the controller. They have 1 month time for disposal. And after that, they will take another 1 month to share the report with the applicant. And here one interesting thing is that if the request for examination was filed by a person interested, so that person will not get the report, FAR report. He will only be intimated, कि thank you very much that you filed the request for examination and FAR has been issued. तो FAR जाएगा applicant को ही जाएगा, applicant will को जाएगा, या फिर उसका एजेंट रहेगा जिसका email ID है उसको जाएगा. And then they will start the process of further process करेंगे उसको. जो पर्सन इंटरेस्टेड इसमें फाइल किया था उसको सिर्फ इंटीमेशन जाता है. इज इट क्लियर नाउ? है ना? सर जो पर्सन इंटरेस्टेड फाइल करेगा, हाँ, तो एप्लीकेंट को इंटीमेशन जाता है या नहीं जाता है? नहीं, तब नहीं जाता. तो फिर रिपोर्ट आने के बाद एप्लीकेंट को पता चलेगा ना कि किसी और ने भी हाँ, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल की. करेक्ट. तो वो कहेगा अरे तो बड़ा अच्छा हो गया, हमारे पैसे बच गए, किसी ने फाइल कर दिया, है ना. बट इफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग इट फर्दर, ही मे नॉट रिप्लाई टू द एफआईआर, है ना. They did not file the request for examination because they do not want to pursue it any further.
Can you tell in which scenario a person will draft the application, file it, it gets published, but they are not interested to pursue the application to the grant? ऐसा कब होता है कि ऐसा नहीं होता है ऐसा, या क्यों करते हैं? Anyone? Any idea? Just think about it. I mean, you may not be having the prior knowledge about this, but just for our discussion. Can you please repeat the question, sir? The question is why it happens, or that one person will do the research and then they will draft the application, file it, it gets published, but after publication they are not interested in pursuing it to the grant. Sir, if he cannot pursue the results, means reply, means if it is not ready with the replies, that may be one condition. That is, you file the request for examination, na? So you file the request for examination. जो Okay. FER में जो objection आया है, I am saying that you are not even ready to file the request for examination. प्रायोरिटी डेट लेने के लिए किया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. There is no priority date. Priority date is regarding the filing, right? Once you file the application, priority date तो मिल गई है आपको, है ना? लेकिन आपका पब्लिश हो चुका है, अभी आपका पब्लिश हो चुका है ना, उसको आप फर्दर परसू नहीं कर रहे. पेटेंट फाइल किया है लेकिन ग्रांट नहीं हुआ, तो आप किसी के ऊपर इंफ्रिंजमेंट केस फाइल नहीं कर सकते ना. यू कैनॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम डूइंग द बिजनेस, है ना? तो फिर वो पब्लिकेशन करने से क्या मेरा फायदा हो गया? क्योंकि देखो, टू फाइल एप्लीकेशन, अगर इफ यू आर नॉट ए पेटेंट एजेंट और इफ यू डू नॉट हैव आइडिया, तो समझ लो कि करीबन 5,600 रुपीज तो आपको लगते हैं, है ना? फाइल करने के लिए यू नीड 1,600 रुपीज, राइट? इफ यू आर नेचुरल पर्सन, एंड देन इफ यू आर ए कंपनी, देन कितना लगता है? 8,000 लगता है. उतना आपने दे दिया आपने, एंड देन उसके बाद में इफ यू डू नॉट फाइल द रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, ओके, आप रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन फाइल नहीं करते हो, वो पब्लिश हो जाएगा, बट देन इट गेट लैप्स्ड, ओके. और अगर आपने प्रोफेशनल हायर किया, किसी लॉ फर्म का हायर किया आपने, वो लॉ फर्म दे विल चार्ज, आई डू नॉट नो हाउ मच, बट एनीथिंग, सपोज आप 50,000 रुपये चार्ज कर लिया उन्होंने ड्राफ्ट करने के लिए, तो आपने 50-60 हजार खर्चा कर दिया, आपने ड्राफ्टिंग को लेकर के रिसर्च किया आपने, और आपका एप्लीकेशन जो पब्लिश हो गया, और उसके बाद आपने उसको रिक्वेस्ट एग्जाम फाइल ही नहीं किया आपने, आपका विड्रॉ हो गया आपका वो. ऐसा कोई क्यों करेगा सर? इज इट द क्वेश्चन क्लियर? बट क्यों करेगा सर? पब्लिकेशन तक तो किया है. वही तो क्वेश्चन है, क्यों करेगा सर वो? देखिए, अगर आप ऐसे सोचते नहीं हो ना, नहीं सोचोगे, नहीं डिस्कस करोगे, तो खाली सेक्शन याद करने से क्या होता है? क्लियर नहीं होती, आप खाली रट्टा होती है, सारे सेक्शन रट हो जाएंगे, पर डिस्कशन नहीं करेंगे तो फिर वो याद भी नहीं रहेगा आपको याद नहीं रहेगा. डिस्कशन नहीं करेंगे तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा, और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, तब तो मतलब प्रॉब्लम हो जाती है बहुत. आपको सब सेक्शन सारे याद है, कौन सेक्शन कहाँ लगाने हैं आपको समझ में नहीं आएगा. आपको फिर आपको सेक्शन कहाँ लगाने हैं, क्यों लगाने हैं, अगर आपको पूरा क्लियरिटी है क्यों होता है, क्यों करते हैं ऐसा, तो बहुत आसान हो जाता है आंसर करना, आदर इंटरव्यू और कभी भी. पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए भी अभी काफी सिनेरियो बेस्ड सारे क्वेश्चन हो गए सारे. कई बार तो मैंने देखा है पीपल जैसे कि उनको क्वेश्चन 3-4 बार पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या है, तो आंसर क्या करें. पेपर 1 में ऐसा हो गया है, पेपर 2 में तो होता ही है, पेपर 1 में भी ऐसा हो गया, को समझ में नहीं आ रहा है, 3-4 लाइन पढ़ रहे जा रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा कौन सेक्शन लगा इसमें लगाया जाए, कौन सा आंसर होगा, क्योंकि आपने खाली सेक्शन याद किए हैं, उसका इम्प्लीकेशन समझा नहीं, उसका यूज समझा नहीं है? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. सो वन आंसर इज जैसे कि अगर मान लो कि वी आर फ्रॉम ए कंपनी, वी हैव R&D, and then we thought that we launch a product, okay, and then we started R&D स्टार्ट किया हमने. अब देखो, it takes around 18 months
18 months तक उसको लगता है ओके someone is playing with the marked red line. So 18 months लगा उसको पब्लिश होने के लिए. Within 18 months the scenario may change, the business idea may change, the world around us may change, something may happen, and now as a company we are no longer interested in pursuing the R&D in that direction. That could happen. That is one scenario that I will not publish it. ऐसा हो सकता है. क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? चेंज ऑफ R&D प्लान इसमें दूसरा ऐसा हो सकता है कि we file the patent only for some business discussion only. जैसे मैंने स्टार्टअप खोला मैंने, ठीक है, स्टार्टअप खोला मैंने, और स्टार्टअप खोलने के साथ साथ मैंने फिर अपने कंपनी रजिस्टर किया, कुछ R&D हुआ था, फिर हमने 2-4 पेटेंट फाइल कर दिए, पेटेंट जो है पब्लिश हो गए. पब्लिश होने के बाद हमने 2-3 इन्वेस्टर के पास में जाकर के हमने बात की, उनसे बात करने के बाद वी आस्क्ड फॉर द फंडिंग उन्हें कुछ मिला नहीं, कंपनी आगे बढ़ने कोई चांस ही नहीं है, वो उसका क्या करना है मतलब. तो हमने इस सिनारियो हमने उसको ड्रॉप कर दिया. हमने ऐसा हो सकता है, उन्होंने कहा कि अब तो कंपनी फॉर्म होगी नहीं, कुछ लगता नहीं. सो इफ दे डू नॉट हैव मच फ्यूचर आइडिया, कर दिया. या फिर जो आपने फाइल किया था काफी जल्दीबाजी में कर दिया आपने, तो समथिंग विच यू वांटेड टू क्लेम ठीक से हुआ नहीं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गई है, वो आगे बढ़ेगा नहीं, यू आर श्योर मतलब आगे बढ़ेगा नहीं, उस केस में लोग ड्रॉप कर लेते हैं. कभी कभी इट इज ए स्ट्रेटेजिक मूव ऑल्सो. कि स्ट्रेटेजिक कैसे मूव होता है कि मेरे पास पैसा है, हम रिसर्च भी करना चाहते हैं, लेकिन हम दूसरे को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि एक बार जिस डोमेन में पब्लिश हो गया इट बिकम्स ए प्रायर आर्ट फॉर एवरीवन. तो उस डोमेन में कोई दूसरा आदमी पेटेंट फाइल नहीं कर सकता. तो दूसरे को ब्लॉक करने के लिए कोई पेटेंट फाइल ना कर सके, उसके लिए भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि पेटेंट फाइल करना बहुत मतलब कि ओवरऑल प्रोसेस के हिसाब देखा जाए इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है. तो आपने पेटेंट फाइल कर दिया और उसके बाद में पब्लिश हो चुका है ना, अब आराम से बैठे हो. क्यों बैठे आराम से? क्योंकि उस एरिया में वो कंपोजिशन कोई दूसरा फाइल नहीं कर सकता. अभी आपने वो कर दिया है, तो जितने भी मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो सारे आपने सोच करके पेटेंट फाइल कर दिया, कंपोजिशन का पेटेंट फाइल कर दिया, वो सारा पब्लिश हो चुका है. इट बिकम्स ए प्रायर आर्ट, इट इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन. अब उस सेम कंपोजिशन को लेकर कौन फाइल कर सकता है? इट बिकम्स ए प्रायर आर्ट. किसने फाइल भी किया तो यू कैन ऑलवेज अपोज कर सकते हो कि हमारा पेटेंट फाइल है, पब्लिश है. तो there are different scenario under which it can happen. So it could be strategically also can be done. It is a part of change in business plan, change in the strategy, or sometimes it happens by mistake also. कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है बहुत सारे एप्लीकेशन है पेंडिंग है, अगर हम एक ही है तो हम कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक साथ बहुत सारा फाइल कर दिया एंड यू मिस समथिंग, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो विड्रॉ हो जाती है. देन देर आर सर्टेन रेमेडीज आल्सो नाउ इन प्लेस, विल डिस्कस सम टाइम लेटर. सो दीज आर डिफरेंट केसेस जिसमें कि वो लैप्स हो जाती है, डेट क्रॉस कर जाता है आपको, एंड देन यू नीड टू फाइट बैक कि अभी क्या करें अभी. तो कभी गलती से हो जाती है कि पब्लिश हो गई है, रिक्वेस्ट में फाइल नहीं किया, विड्रॉ हो गया. कई बार स्ट्रेटेजिक मूव होती है, कई बार हमने डिस्कस किया बड़े कंपनी भी करते हैं, कई बार छोटी कंपनियां भी करती हैं. तो देयर डिफरेंट सिनेरियोस. इज इट क्लियर नाउ? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? Yes, sir. Okay, so reply for FER is processed in order of reply received. So it is very important, and it is very important that you file your request for examination early. ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जो एग्जामिनेशन होता है इट इज इन द ऑर्डर ऑफ द रिक्वेस्ट फाइल. तो हो सकता है किसी ने एप्लीकेशन बाद में फाइल किया, लेकिन रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन जल्दी फाइल कर दिया है, उसका जल्दी एग्जामिनेशन हो जाए, जल्दी ग्रांट हो जाएगा. अगर हमने इफ आई टेक पूरा समय ले लिया, हम जितना समय हमको दिया है 31 मंथ्स ले लिया, पर लेके हम फिर फाइल करते हैं रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन, तो काफी डिले हो जाएगी का हमारा एग्जामिनेशन रिपोर्ट, हमारा पेटेंट बहुत देर से ग्रांट होगा. तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि दे फाइल द रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन साथ साथ में फाइल कर लेते हैं. So because that is in order. When you process the FER, also it happens in order. So
इट्स लाइक ए क्यू, मतलब जैसे हम लाइन में खड़े होते हैं क्यू में, वैसे क्यू में चला जाता है वो, क्यू के हिसाब से 1 by 1 क्लियर होते रहती है। एंड देन टाइम फॉर पुटिंग एप्लीकेशन फॉर ग्रांट सेक्शन 21, तो 6 मंथ टाइम लगता है एफआईआर को रिप्लाई करने के लिए। अगर आप 6 मंथ में रिप्लाई नहीं कर सकते हो तो क्या करना है, यू कैन यूज फॉर्म 4, ओके, एंड देन अप टू 3 मंथ्स उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड देन द फी इज 1,000 और 4,000 रुपीज, बट दैट इज यू पेड पर मंथ। अगर 1 महीना तो 1,000 होगा, 2 महीने तो 2,000, एंड फॉर 3 मंथ्स 3,000 रुपीज, लाइक दैट। So it is per month. It's not like 3 months के लिए 1,000 नहीं है. It is per month fees है. Okay. So if you cannot do reply, so in which scenario you think that 6 months may not be enough? Under which scenario? Any idea? मतलब एक क्वेश्चन तो आया है, उसका खाली रिप्लाई भेजना, बस ईमेल आया है, ईमेल भेजना है, उसमें 6 मंथ क्यों चाहिए? एंड वाई Sir, 6 मंथ में बी लेस? बोलिए। sir, it happened to me actually. ओके, वेरी गुड। So I was waiting for NBA approval, अच्छा, National Biodiversity Agency. So it took me more than 6 months, sir. ओके, गुड। So that is some cases. I mean, sometimes कुछ comparative example पूछ देते हैं वो लोग। Okay. So how is it so? तो वो comparative example बनाने के लिए you need to do some research, generate data, और उसमें टाइम लगता है उसमें। तो इसलिए it takes 6 months, sometime more time, like it may take some more time. So therefore this time is given. It's not like कि उन्होंने एक ईमेल भेजा और आपने एक ईमेल रिप्लाई कर दिया, काम खत्म हो गया, सेम डे रिप्लाई कर दिया, वैसा हो नहीं पाता वैसा। इट इज वेरी सीरियस मैटर। आपका रिप्लाई सही नहीं हुआ तो आपका पेटेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए उनका जो सर क्वेश्चन। कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर रिपोजिटरी में जब हम लोग इसको डिपॉजिट करने के लिए देते हैं, वो डेट ऑल्सो में टेक टाइम सर, ये भी होता है सर। हाँ, देयर पर सम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट 3 months का एंड पीरियड। यस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर डिपॉजिट किया, वो एनबीए वगैरह फाइल किया, तो उसका रिप्लाई आने में 2 मंथ 3 मंथ लग जाते हैं ना, हाँ, उसके लिए भी ये होगा। and then there is one under rule 24b to I. So examination or divisional. Okay, so for division application, request has to be filed. Okay, again, if you do not file the request, this doesn't happen. And then divisional is examined only after the first application is examined. Okay, and then it happens quickly, within 1 month it happens, so that you can just keep in mind. Okay, then rule 24c is for the expedited examination. That is important. So it is form 18a, then fees 8,000, and for other it is 6,000. बहुत ज़्यादा है. And the condition for is that I mean, if it is PCT application and the India is ISA, I mean search agency or preliminary examination authority India select किया है अपने PCT application में, and then it can happen. It is startup है, a small entity है. This we discuss detail in our first session regarding all the investment कितना होना चाहिए और कितना turnover होना चाहिए, सब we will discuss last time. Then it is a natural person, and all are natural person, and one is a woman. Then you can do it. Government is applicant, and is the applicant is an institute, and then institute is established by central government or state government, controlled by the government. Applicant is a government company, है ना? Under section Company Act 45, section 2. जो भी बताए, in the short क्या है? It is startup, a small entity, natural person, where one is woman या government है. So they can do. Okay. Then applicant is eligible pursuant to agreement between IPO and a foreign country. So this is PPH, Patent Prosecution Highways. So just like Japan is a participator in the PPH, तो अगर हमने एक फॉरेन एप्लीकेशन फाइल किया, जेपीओ में फाइल किया है, तो अंडर पीपीएच वी कैन एक्सपीडिएट द एग्जामिनेशन इन इंडिया, वो हम कर सकते हैं. And the request for examination can be converted to request for expedite examination. That is also possible. आपने पहले फाइल किया था और बाद में आपने इसको कहा कि नहीं, इसको एक्सपीडिएट कर दो आपको, तो एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ता है. जैसे आपने पहले 8,000 पहले फी पे कर दिया है, देन अगेन
यू नीड टू पे अनदर 4,000 रुपीज, 8,000 पे नहीं करना पड़ता। कंपनीज पे अगर 60,000 पे किया पहले, बाद में अगर ना 40 पे करना पड़ता, तो यू एंड अप पेइंग 1 लाख रुपीज टू पेटेंट ऑफिस फॉर द कंपनीज। सो यू नीड टू प्लान। सो दिस आर ऑल पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, क्योंकि हर एक पैसा खर्च करते हैं ना, इसलिए जो पेटेंट एजेंट जो रहते हैं कंपनीज में या फिर लीगल फर्म में रहते हैं, सो इट इज देयर ड्यूटी टू एडवाइज द क्लाइंट प्रॉपरली। ये देखो आप पहले आपने रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम फाइल किया है, देन अगेन यू वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन, अगेन यू आर फाइलिंग सम एक्स्ट्रा फीस। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन आई मीन कैन यू मेड along with this, आप साथ में भी कर सकते हो, सो यू कैन फाइल टुगेदर, दैट इज यू फाइल द फॉर्म 9 एंड फॉर्म 18 टुगेदर फाइल कर सकते हो आप साथ में। सो अर्ली पब्लिकेशन and also the expert examination can file together. Okay. Then I mean for expert examination, FER response can be made in 6 months, and then again for that also you have 3 months extension the same way. So you can read the rule for 24C11, and you see the fee is higher. It is 10,000. उसमें 1,000 था for no, I mean 2,000 10,000 उसमें कम था उसमें, so it is higher than that. Okay, and then once we file for request for examination, तो क्या होता है कि under section 13 examiner will do the search, so they do the search also. And here the role of this in many companies they have the pattern analyst. So pattern analyst जो होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं कि कंपनीज में जो भी पैटर्न फाइल होते हैं, so there are different forms where they have the pattern analyst. So pattern analyst need not be a pattern agent, so they are not the pattern agent, so they also do this searching like examiners. So वो सर्च करते हैं, तो कंपनी पैटर्न फाइल होती है, तो पैटर्न फाइल पैटर्न ड्राफ्ट होती है, ड्राफ्ट नहीं भी हुआ है तो on the based on the concept, pattern analyst will do the search and tell the company or the client कि these are the prior arts, if you want to protect from rejection from the patent office, you better take care of this prior art in your claims and in drafting. तो ऐसा होता है, तो that is how in-house patent agent होते हैं, या फिर there are many companies who help in supporting doing this search. So आपका जो application है, क्योंकि जो R&D जो काम कर रहा है, they may be knowing their area much better, but they may not be aware of all the references that may exist somewhere, है ना, हो सकता है कुछ उनको पता ना हो, मतलब. So therefore this search is required. So sometimes they take help of searching before filing the application, so that they can better draft, they better know their playground area, they better know कि जो उनका claim है उसको कितना बड़ा बना सकते हैं. So for example, if I say metal oxide, so I say the catalyst of metal oxide, so can I say metal oxide and claim all the metals in the periodic table? ऐसा कर सकता हूँ क्या कि अगर किसी ने पहले ही मेटल ऑक्साइड क्लेम कर रखा है कैटलिस्ट, देन मेरे पास जो एरिया बचता है, इट इज जस्ट लाइक आई कैन से जिंक ऑक्साइड और रुथेनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, आई कैन से स्पेसिफिक ऑक्साइड. अगर ऐसा प्रायर आर्ट मुझे मिलता नहीं है, आई कैन से मेटल ऑक्साइड, सो देन मेरा क्लेम का जो स्कोप है वो बड़ा हो जाता है. सो फॉर दैट पर्पस many companies they have in-house pattern analysts who do this kind of searching and help. So they do not draft, but they do the searching part and support the attorney in drafting. Otherwise, when our report, our patent application is filed, request for examination is filed, then in the examination office, the examiner will search, okay, and then they will look for patent published before the filing date of complete specification, and another is called, we also call it a secret patent. That means I mean for example, आपने पेटेंट फाइल किया था 1 जनवरी को, ओके 1 जनवरी को ऐसा कोई प्रायर पब्लिश हुआ नहीं था, क्योंकि जब कॉम्पिटिटर था उसने पेटेंट फाइल किया, पकड़ लो हमने पेटेंट फाइल किया 1 फरवरी को, आपका कॉम्पिटिटर ने पेटेंट फाइल किया था 1 जनवरी को, और 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना ही हुआ है, तो उसका जो पेटेंट था पब्लिश तो हुआ ही नहीं, उसका अभी पब्लिश हुआ ही नहीं, वो तो बाद में पब्लिश होगा आपका. तो जो एग्जामिनर जो सर्च कर रहा है उसको नहीं मिल सकता वो, है ना.
तो अगर उसने पहले फाइल किया, मतलब आपका एप्लीकेशन फाइल करने के 18 महीने पहले उसने पेटेंट फाइल कर दिया था, तो हो सकता है कि जिस दिन आपने पेटेंट फाइल किया है उस डेट के पहले अगर आप ढूंढोगे भी तो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि वो तो पब्लिक डोमेन में नॉलेज था ही नहीं। तो in that case, it may happen that such application may get published on or after the filing date of your application, complete specification. So those are called the secret patent, filed but not published. तो वैसा patent उनको मिल सकता है उनको. Then second is like anticipated by any document published in India or elsewhere before filing date. तो एक तो patent सर्च कर रहे हैं, दूसरा any document, न्यूज आर्टिकल हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, फिर जर्नल आर्टिकल हुआ, इन जर्नल पोस्टिंग इन द इंटरनेट हो, कुछ भी हुआ, रिटन डॉक्यूमेंट, बुक्स, कुछ भी हो सकता है, दे सर्च इट. And if CS is amended before grant, then amended complete specification is also examined. Then it says that examiners has no liability. आप अगर पेटेंट ग्रांट होता मान लो, हाँ, तो ये क्लोज बड़ा इंपॉर्टेंट है. पेटेंट ग्रांट हो गया, ग्रांट होने के बाद किसी ने अपोज कर दिया, अपोज करके आपका पेटेंट को इनवैलिड कर दिया. अब आप एग्जामिनर को नहीं पकड़ सकते कि तुमने ठीक से एग्जामिन क्यों नहीं किया, क्यों मेरे पेटेंट को ग्रांट कर दिया, क्यों तुमसे ये प्रायर मिक्स हो गया. तो ऐसा करके आप एग्जामिनर को आप यू कैन नॉट ब्लेम, मतलब कोई लायबिलिटी नहीं होती. देयरफॉर दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट. Then under rule 29, in case of secret prior arts, okay, controller postpones the grant of patent by and they give 2 months time to remove the objection. अगर क्योंकि सीक्रेट प्रायर आर्ट याद रहेगा ना, मतलब कि फाइल पहले हो गया था, पेटेंट पब्लिश नहीं होता, क्योंकि इट टेक्स 18 months टू गेट पब्लिश, तो उसको हमने नाम दिया सीक्रेट प्रायर आर्ट्स. तो अगर ऐसा कुछ आ जाता है ग्रांट के समय एग्जामिनेशन में, then the controller will give 2 months time to remove the objection. Remove objection means उस प्रायर आर्ट में जो डिस्क्लोज किया गया था, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिस्कस कर रहे थे मेटल ऑक्साइड, तो आई एम ट्राइंग टू क्लेम मेटल ऑक्साइड बिकॉज मैंने सर्च किया और मुझे कहीं पर भी कोई मेटल ऑक्साइड मिला नहीं एज ए कैटलिस्ट, सो मैंने क्लेम कर दिया. लेकिन एक सीक्रेट प्रायर आर्ट था जिसमें मेटल ऑक्साइड क्लेम किया गया था, तो नाउ इट बिकम्स ऑब्जेक्शन. आई कैन नॉट क्लेम मेटल ऑक्साइड बिकॉज दैट इज ऑलरेडी नोन. देन आई विल से zinc oxide. I do not claim metal oxide, or I can say I will claim the say some group 1 or group 2 or group 3. Those oxides I can claim, or I can just claim one oxide, iron oxide, zinc oxide, something like that. So I can change my claim. So that is called remove objection. Is it clear? Any question till now? Yes, sir. Yes. Huh? Clear, na? Yes, sir, clear. Good. Okay. Then section 14. So consideration of report by examiner by the controller. Okay. So controller will provide FER, and then there's a hearing process, and then they will allow for hearing if you want. So process of hearing is given in Rule 28 and Rule 28A. So उसमें क्या था, CS can be amended. जैसे मैंने कहा, you can change the claim. And then they give a chance of hearing, and can be made 10 days before ending of 6-month time period. आप दे सकते हैं. So for you, just you can remember that under section 14 and rule 28 and 28A, there is a hearing process is there, and 10-day का time limit है. And also like if you reply within 1 month, then also you can also ask that I want early hearing. आप डाल सकते हो, you can give notice, early hearing दे सकते हो आप. And if hearing takes place or doesn't take place, depending on that, controller will decide. So ये hearing काफी important है. तो in many law firms and companies क्या होता है कि जैसे patent agents, once you become patent agent, वो काफी busy रहते हैं hearing में. तो आप सुनोगे आज मेरे hearing था, आज इस केस का hearing था, कल उस केस का hearing था. And then you need to be very well versed with the patent application file and all those processes. Okay. Then hearing can be online and it's considered that it's taken place in the office. And then if they ask for document, then 15 days is required to submit. And then just a minute. Okay. So that is section 14, and then section 15 is power of control refuse
or require amendment. So that is very not very difficult to remember. So if FER is not satisfactory, he can ask for amendment or he can refuse it. So control may refuse it. That is section 15, and he can also ask for amendment. Section 16 is, we know this is a divisional, respecting divisional. So when to file? Before the grant. Okay. So why it is said before the grant? So ऐसा होता है कि आपने FER आया है उसमें, और उसमें कंट्रोलर ने बोला कि आपका एप्लीकेशन में दैट इज द यूनिट ऑफ इन्वेंशन नहीं है, मतलब इट क्लेम्स मल्टीपल इन्वेंशन टुगेदर. ओके. सो अगर ऐसा आता है सिनेरियो, देन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम. मतलब ऐसा जल्दी करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टाइम टू फाइल डिविजनल. यू मे फाइल डिविजनल्स, यू मे नॉट फाइल डिविजनल, बट यू विल हैव टू अमेंड द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दैट यू फाइल्ड. वो तो एज सच ग्रांट तो होगा नहीं वो. ओके. क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्शन आया है, यू नीड टू अगेन रीड्राफ्ट इट, चेंज द क्लेम्स एंड देन सेंड इट, और उसमें बाकी निकालने पड़ेंगे, देन यू कैन फाइल. और जो बाकी जो इन्वेंशन आपने निकाल दिया था उसका आप डिविजनल फाइल कर सकते हो, एंड यू कैन डू एनी टाइम बिफोर द ग्रांट. तो आपके पास टाइम है. तो यूजुअली लोग क्या सोचते हैं कि हम डिविजनल फाइल करेंगे तो उसका भी हमको रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, ड्राफ्टिंग, सब मेहनत लगेगी. सो दे विल लुक फॉर, चलो इसका हम रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन तो हमने फाइल किया था, एग्जामिन हो गया है, दोबारा एग्जामिन होगा, उसका फिर क्या होता है, तो लगता है कि हाँ अब एक ग्रांट की तरफ जा रहा है अभी, तभी वो फाइल करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एंटी डेटिंग. तो हम डिविजनल बाद में फाइल करते हैं, लेकिन हम उसका प्रायोरिटी पहले का ले लेते हैं. मतलब सो व्हाई इज फाइल डिविजनल एप्लीकेशन if you have more than one invention. Okay. So applicant also can file if he thinks that there are more than one invention in provisional complete specification, they can file. Or if the controller raises any objection in FER, then also they can file. So new CS to be filed, but it should not have material not disclosed in the first complete specification. So that is important point. So जो पहले आपने फाइल किया था, it should be same. Matter should be same. Claims are different. Okay. Matter is same. Claims are different. So claims in the complete specification of the main and divisional, this should not be same. Okay. अगर ऐसा होता है तो फिर से चेंज करना पड़ेगा. What should be same? Material, मतलब जो टेक्नोलॉजी डिस्क्लोज किया था आपने, जो प्रोसेस है, कंपोजिशन है, जो भी डिस्क्लोज किया था आपने डिस्क्रिप्शन में, वो सेम रहता है. क्लेम्स अलग अलग रहते हैं, क्योंकि क्लेम्स इज ओनली फॉर द इन्वेंशन, वन इन्वेंशन. एंड डिविजनल इज कंसिडर्ड टू बी फाइल्ड ऑन सेम डेट एज द पेरेंट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन. तो ऑल्दो हम डिविजनल जो है, जैसे मान लो कि हमने ऑलरेडी इट इज 12 मंथ्स टाइम बीत चुका है, प्रोविजनल फाइल किया, फिर कंप्लीट फाइल किया, 12 महीने बीत चुके हैं. उसके बाद हमने वी हैव दिस टाइम पीरियड टू फाइल द रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, वो भी टाइम बीत गया हमको. फिर बाद में तो बहुत महीने बीत गया, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल मानो निकल जाता है ऐसे करते करते, है ना. उसके बाद FER आता है, फिर हम कुछ दिन रुकते हैं, मतलब FER के बाद भी 6 महीने हमने फिर से रुक गए, फिर से हमने, तो 2 साल 2.5 साल ऐसे निकल जाते हैं. उसके बाद हम डिविजनल फाइल करते हैं. लेकिन जो फाइलिंग, जो प्रायोरिटी डेट रहेगी, वो है जो मेन, जो किसने फाइल किया था, पेरेंट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन था, उसके डेट को माना जाता है. दैट इज इंपॉर्टेंट. So divisional is considered to be filed on same date as the parent complete specification and examined as usual when request is filed. This is called antedating. So rule 24B14, है ना. So again 31 months and 6 months as the case may be. So 6 month कैसे? डिविजनल फाइलिंग के बाद. तो 31 मंथ्स टाइम पीरियड है आपका लेने के लिए, लेकिन अगर आपको टाइम ज्यादा बीत चुका है, मतलब ऑलरेडी बहुत टाइम निकल गया आपका डिविजनल फाइल करूं कि ना करूं डिसाइड करने में, सो देन 6 मंथ फ्रॉम द फाइलिंग डेट डिविजनल व्हिच एवर इज लेटर. तो आपको एडिशनल 31 मंथ्स के बाद भी डिविजनल के लिए 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है आपको, अगर पूरा हो जाता है तो ये करने के लिए, रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम फाइल करने के लिए. एनी डाउट टिल नाउ और लुक्स कॉम्प्लिकेटेड? क्लियर ना? Okay, so no response. I take it clear. Okay, so section 17. Again, this is regarding the post dating. So post dating application request
of applicant and request can be made before the grant application and post dating cannot be more than 6 months. तो एक सेक्शन 9 में था पोस्ट डेटिंग का एंड एक सेक्शन 17 में है. तो पोस्ट डेटिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है. while reading it looks very easy to understand कि सेक्शन 9(4) में क्या था कि पहले हमने एक प्रोविजनल फाइल किया, देन आई फाइल्ड ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड देन हमने उसका डेट को हम चेंज कर रहे हैं, प्रोविजनल कैंसिल कर दिया, हमने कंप्लीट की डेट को फाइनल डेट बना दिया. तो इन दैट केस आई गेट ऑलमोस्ट 12 महीने का मिल जाता है हमको, या फिर 10 महीने का एक्स्ट्रा मिल जाती है. यहाँ में 6 मंथ का है. सो दिस इज इन प्रोविजन विद द सेक्शन 9. सो सेक्शन 9 के साथ में इसको कंबाइन किया गया है. सो हाउ टू इंटरप्रेट इट, इसमें अभी तो कुछ केस लो आया नहीं. ओके, सो मतलब कि ये 6 मंथ, तो कहना मतलब ये है कि जो प्रोविजनल फाइल किया मैंने 1 जनवरी को एंड देन 10 महीने बाद मैंने कंप्लीट फाइल किया है, नाउ आई वांट टू चेंज इट. तो 10 महीने में करना अंडर सेक्शन 9 दिखता है, बट अंडर सेक्शन 17 क्या वो 6 मंथ होता है, या फिर हमने जो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया हमने उसका ही डेट हम 6 मंथ एक्स्ट्रा चेंज करना चाहते हैं. सो दैट इज ऑल्सो अंडर सेक्शन 17. ओके, सो यू शुड रीड दिस more carefully. Okay, so sometime there is no case law as such, कभी कुछ हुआ नहीं है. So just for understanding is you should know that there are two post dating, section 9(4) में 17 में है. इसमें अंडर 17 6 मंथ ही है, अंडर सेक्शन 9 में it looks like that it could be 10 months also. Further application जो है, so as a patent agent, if someone asks you that should we take help of post dating, so you should say that you should not take much risk about regarding post dating. Normal process करना ज्यादा बेहतर है. There could be some scenario कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, then in that case you want to post date. क्योंकि पोस्ट डेटिंग में एक प्रॉब्लम क्या है कि जो 6 महीना या 10 महीना जो आपने एक्स्ट्रा लिया है, 10 महीना पकड़ लो सेक्शन 9(4) में, सेक्शन 17 में 6 महीना, उसके बीच में कोई प्रायोरिटी मिल जाती है ड्यूरिंग द प्री ग्रांट अपोजिशन या पोस्ट ग्रांट अपोजिशन या रिवोकेशन में मिल जाती है, देन इट इज वेरी इजी टू इनवैलिडेट दोस पेटेंट एंड रिवोक हो सकती है. तो ये रिस्क रहेगा. लेकिन कई बार एडवांटेज है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के लिए आपको और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा, तो आप डेट चेंज करना चाहते हो. लेकिन नाउ देयर इज अ रूल 138, हम डिस्कस करेंगे बाद में, उसमें भी आप 6 मंथ एक्स्ट्रा ले सकते हो उसमें आप. So as a patent agent, you should read this section very carefully. Rule 138, section 9(4), 17, date change करने वाला. So law is not very straightforward. There are many loopholes, and you need to read it very carefully. क्योंकि जब आर्गुमेंट जब देते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि काफी ब्लैक एंड व्हाइट चीजें होती हैं. You read under this, there are some case laws भी होते हैं, उसको लगा करके रीड करके पढ़ते हैं, दे आर्गुमेंट करते हैं. सो बहुत होता है, आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन मूवीज समथिंग लाइक दैट. ऐसा होता है. इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट लाइक हाउ यू रीड एंड हाउ यू इंटरप्रेट इट. ओके, सो बी वेरी केयरफुल ऑन दिस. So in response of FER section 15, if applicant submits application and then controller may change date on which the revised documents are submitted as actual filing date. तो कभी ऐसा होता है जैसे कि मान लो कि सीए से कुछ चेंज किया आपने, कुछ रिक्वायरमेंट रहा एफईआर में, फिर बाद में you took some time and then you file it. So in that case, controller may change the date or filing to be the date on which it was actually filed after complying with all the requirements. Then section 18, we'll go to section 21 today. So power of control in case of anticipation. So controller can refuse the application in case of anticipation, or it can ask for amendment. It is very clear and we understand this. Another is that if the anticipated patent document was filed, so we are talking about the secret document, filed but not published or published on or after the application date. So then reference has to be made. अगर ऐसा होता है, डॉक्यूमेंट होता है, and if you cannot remove the objection, then the reference has to be made. And under rule 29, controller will give additional 2 months आपको to remove the objection anticipation के लिए, secret patent के लिए. And if not done, it may be also hearing हो सकती है. And then rule 30, 10 days notice, we can give notice for hearing 10 days.
अगर ऐसा नहीं होता है, देन अंडर रूल 31 क्या होता है कि आफ्टर द क्लेम this line has to written reference has been directed in pursuance of section 18(2) of the patent in 1970 to the specification file in pursuance application number this. तो वो जो एप्लीकेशन नंबर है उसका मेंशन करनी पड़ती है कि ये हमारा इट एंटिसिपेट्स बेस्ड ऑन दिस सिक्योर प्रायर एक्ट, ये डाला जाता है उसमें. ओके, तो सेक्शन 18 इन कैसे एंटिसिपेशन. तो वेरी इन सिंपल वर्ड्स, अगर एंटिसिपेशन होगा तो या तो आपका पैटर्न रिजेक्ट हो जाएगा या आपको उसका अमेंड करना पड़ेगा. अगर इफ इट इज केस ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेट पैटर्न मतलब कि वो पैटर्न पहले फाइल हुआ था, आपको पता नहीं था क्योंकि पब्लिश नहीं हुआ था, और बाद में आपके फाइलिंग डेट के बाद पब्लिश हो गया, एंड देन एग्जामिनर को मिल गया, आपको मिला नहीं था आपको. इन दैट केस एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा टाइम देता है. देयर कुड बी ऑल्सो हियरिंग, 10 डेज नोटिस देकर आप हियरिंग भी होती है आपको, आप जाके अपना यू कैन एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजी, यू कैन एक्सप्लेन हाउ इट डिफर्स एंड अमेंड इट, वो सारे प्रोसेस कर सकते हो. अगर कुछ तरह का नहीं हुआ देन ये लाइन लिखना पड़ता है कि हमारा डॉक्यूमेंट जो इसे एंटिसिपेट होता था. ओके, एंड इन केस ऑफ पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट, ओके, सो ये क्या है, ये तो था प्रायर आर्ट, प्रायर आर्ट था, मतलब प्रायर आर्ट था. लेकिन पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है कि अगर उनको लगता है एग्जामिनेशन के टाइम पे कि आपने जो क्लेम किया है, से फॉर एग्जांपल इफ आई क्लेम द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेन और कंपोजिशन ऑफ द पेन ऑफ द कवर ऑफ द पेन, ऐसा मैंने फाइल किया है पेटेंट, तो वो पेटेंट पेन बनाने के लिए, मतलब जो है बनाने के लिए मुझे कुछ प्रोसेस जाना पड़ता है. बट इफ देयर इज ए पेटेंट which talks about the process, so the process is about the making of the pen, but I am claiming the pen. लेकिन अब कंट्रोलर को लगता है कि वो पेन में बिना प्रोसेस फॉलो बना नहीं सकता, तो देन आई एम potentially going to infringe it if I use this right. So that is called potential infringement. आपका हुआ नहीं infringement आपका, लेकिन कंट्रोलर को लगता है कि if you want to pursue this, you want to commercialize this, and आप काम करना चाहते हो, ये इन्फ्लुएंस करेगा, ऐसा प्रायर मिलता है. सो इट इज नॉट लाइक दे वांट टू रिजेक्ट योर एप्लीकेशन बिकॉज प्रायर आर्ट नहीं, बट इट में इन्फ्रिंज इट. सो एप्लीकेंट अवॉइड इट बाय आइदर यू नीड टू इनवैलिडेट द पैटर्न. ओके, बोलो कि ठीक है हम उसको इनवैलिडेट करेंगे, यू कैन गो फॉर आइदर प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट एज द केस में भी, यू कैन डू इट, है ना. और यू कैन अमेंड योर कंपनी स्पेसिफिकेशन to avoid this, है ना. और if reference to that potentially infringing patent is made, it can be removed if the patent is no longer in force or it is invalidated, it is amended, कुछ भी होता है. And in the both the cases they give under rule 32 and 29 2 months time to remove the objection, and under rule 33 अगर ऐसा नहीं होता है then after the claim this line is mentioned, the reference has been directed in pursuance of section 19(1) of the Patent Act 1970 to the patent number this. So सबको मालूम चलेगा कि ये पेटेंट को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वो पेटेंट को किसी को लाइसेंस करने जा रहा हूँ, तो उसको जो पेटेंट मिले हाथ में मिलेगा वो बोलेगा, मैं मुझे बोलेगा देखो अरे इट मीन्स दैट टू फॉलो दिस पेटेंट आई मे इन्फ्रिंज दिस पेटेंट नंबर, ये ऑलरेडी लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है. So that he may think about it, and it's also a reminder. So ये लाइन लिख जाती है. So then हम अगर किसी को लाइसेंस करने जा रहे हैं एंड जो पेटेंट मिला था मेरे कॉम्पिटिटर का है, then he may think twice before taking license of my patent. So मेरा पेटेंट का जो वैल्यूएशन है, लाइसेंस का जो फी है वो कम हो सकता है, या लाइसेंस डील जो है सक्सेस नहीं हो सकते, वो कहेगा कि आपका पेटेंट में लेके क्या करूंगा मैं, क्योंकि आई एम गोइंग टू इन्फ्रिंज द अदर पेटेंट. तो या तो उस पेटेंट को रिवोक करा दो, इनवैलिडेट करा दो, कुछ करो उसको, या फिर जो है आपका पेटेंट लूंगा नहीं मैं. आइदर आई विल हैव टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम बोथ फ्रॉम यू एंड एज वेल दिस पेटेंट आल्सो. क्लियर? एनी डाउट ऑन दिस? क्लियर ना? Yes, Clear, sir. sir. Very good. Then section 20, power of control to make order regarding substitution applicant. That is very easy to remember. Before the grant of patent, अगर आपको चेंज करना है कंट्रोल मतलब एप्लीकेंट चेंज करना आपको, देन
Form 6 is required. So you can change the applicant because of some क्या बोलते हैं इसको merger equation हो गया या फिर the person is Yes. dead, है ना, ऐसा कुछ होता है. Then you can notarize copy चाहिए होती है, कि notarize copy चाहिए होती है. कि application dies then death certificate चाहिए होती है अगर Form 6 वगैरह है. So it's just like changing the applicant name करने के लिए. And these are the relevant sections, section 34, section 35. Fees is the same, Form 6 use करना है. And then if there dispute also, dispute हो जाती है कि कौन applicant है कौन नहीं, ऐसा होता है, then also you can use Form 6. And hearing is also available. You can go for hearing, and that is done. And last for today, section 21. So time for putting for grant. So like 6 month time, right? They give 6 month time period for you to comply with all the FAR requirement. अगर नहीं कर पाए, रिप्लाई नहीं किया आपने, तो पैटर्न अबैंडन हो जाती है. अगर आपने FAR रिप्लाई किया है, सक्सेसफुल नहीं होता तो भी उसको अलाउ नहीं करेंगे. सब कुछ ठीक ठाक रहा, then your patent is put for the grant. If there are some court cases are going on, then they may extra time, depend on the court cases. Okay. And if you want to extend some more time, as we discussed earlier also, so under Form 4 लेकर के, and then you need to pay the fee. Okay. So this is done. And if it is the case for the expedited one, then the fee is higher. Form is same, Form 4 is there, but the fees are different if it is a case of expedited one. Okay. So that's all for today. So we covered a lot today.